Hello students, let's start with today's topic, that is the characterization of isolated membrane. This topic is in the continuity with the previous topic. बट जब हमने मेम्ब्रेन को आइसोलेट कर लिया, फ्रैक्शनेशन कर लिया, तो अब हम उसको पहचानेंगे कैसे कि जो हमने मेम्ब्रेन को आइसोलेट किया है वो वही मेम्ब्रेन है जिसके साथ हमने उसकी टोपोग्राफी स्टडी करनी है और हमने ये देखना है कि जो हमारी जो मेम्ब्रेन आइसोलेट हुई है उसमें कोई कंटेमिनेशन तो नहीं आई। तो उसके लिए कौन सा पर्टिकुलर हमें टैग देखना है जो उसके ऊपर लगा हो, जो हम उसको आइडेंटिफाई कर सके कि जो हमने मेम्ब्रेन सेपरेट की है वो हमारी डिजायर्ड मेम्ब्रेन है। तो उसके लिए द पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक विच एक्ट एज अ टैग दैट आर द मार्कर्स, हम उसको मार्कर्स का नाम देते हैं। देयर आर डिफरेंट मार्कर्स विच मार्क्स द presence of the particular membrane which is of our interest. So there are basically two techniques by which we can study the membrane. First technique is the electron microscopy. Along with this is the histochemical technique. Second one is the use of enzymes or antigens, receptors and different covalent ligands which binds with specific protein, lipid or glycoprotein which are present on the cell membrane. I will discuss both these topics one by one. As most of the students are familiar with the technique electron microscopy, this is a very specialized technique by which we can study the various dimensions or topography of the membrane. But as I already told you that during the fractionation procedure our membrane get vesiculated or it gets shrunken. So it is very difficult to study the membrane in the electron microscopy. So for example, by this method we can study the membrane of nuclei, the membrane of mitochondria, but the membranes of other organelles, they are very difficult to identify. So this technique is not preferred in the case of the vesiculated membranes. Now coming to the histochemical technique. In the histochemical techniques, students, we use particular strain. For example, in the case of DNA, we use fusion stain which binds to the DNA, and we came to know that the DNA is the part of the nuclei. Similarly, we can identify the enzyme acid phosphatase which is present in the lysosomes. Although the result which we obtained from this histochemical technique is unambiguous, but it is not suitable for all the organelles. Now students, coming to the second part, that is the use of enzymes. So what are enzymes? Enzymes, they are the basically proteins. They are made up of protein, but they are very, very specific. They are specific for their inhibitor, they are specific for their substrate, and their affinity for the substrate is very, very unique, as all the medical students are very familiar with that the particular enzyme bind with the particular substrate. So we
can use this enzyme as a marker because each cell organelle perform different functions and the function is performed by the different enzymes and enzymes they are present on the membrane of that particular organelle. For example, we know that all the electron transport chain enzymes they are located on the inner mitochondrial membrane. So we can use the inner mitochondrial membranes enzyme as a marker. For example, हम enzyme लेते हैं सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस. ये enzyme बहुत यूज होता है इन द Krebs cycle और ये enzyme रिएक्शन कैटालाइज करता है इन द कन्वर्जन ऑफ सक्सीनेट टू फ्यूमेरेट और ये एंजाइम लोकेटेड होता है इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. सो ये एंजाइम एक मार्कर की तरह बिहेव कर सकता है और जिससे हम ये पहचान सकते हैं कि ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है. तो अब मैं एक छोटा सा टेबल ड्रॉ करूंगी जो डिफरेंट एंजाइम जो है वो लोकेटेड होंगे डिफरेंट मेम्ब्रेन्स के ऊपर. तो जो स्टूडेंट ये लेक्चर नोट कर रहे हैं वो प्लीज मेरे साथ ये टेबल भी ड्रॉ करें. सो बिगिन विद firstly write down organelles, then the marker. First is the nuclei. Nuclei contain enzyme NAD pyrophosphatase. ये जरूरी नहीं कि सिर्फ यही एंजाइम जो है वो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन के ऊपर. इसके अलावा और भी एंजाइम हो सकते हैं लेकिन मैं आपको यहाँ पे सिर्फ एक और दो ही मेंशन करूंगी. सेकंड इज द माइटोकॉन्ड्रिया. जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया को फ्रैक्शनेट कर लिया तो हम इसको कैसे पहचानेंगे. माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन है, आउटर एंड इनर. आउटर मेम्ब्रेन के ये जो एंजाइम प्रेजेंट है वो है मोनोएमीन ऑक्सीडेज और इनर मेम्ब्रेन के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है दैट इज द सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज एंड अनदर इज द साइटोक्रोम ऑक्सीडेज. Cytochrome, this is enzyme system which is used in electron transport chain in respiration. Succinate dehydrogenase enzyme is one of the enzyme in Krebs cycle. The third organelle is the endoplasmic reticulum and the marker enzyme for the endoplasmic reticulum is glucose 6 phosphatase. After that is the sarcoplasmic reticulum. For example, हमने जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेपरेट किया है वो मसल का है तो उसका नाम हो जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो दैट मेम्ब्रेन कंटेन कैल्शियम एटीपीएस और कैल्शियम पंप. स्टूडेंट्स प्लीज इसको नोट कर लें. फोर्थ ऑर्गेनेली है apparatus or Golgi body. The enzyme which is the identical feature of this is the glycoprotein sugar transferase. After that is the chloroplast which is the main photosynthetic organ. The chloroplast contain the enzyme ribulose diphosphate carboxykinase and last is the
plasma membrane. It is rich in sodium potassium pump. Along with this, there are so many markers which are located on the membrane. Last but not the least is the cytoplasm, which contain the enzyme lactate dehydrogenase. So students, ये भी आप सब नोट कर लें. स्टूडेंट्स, जब हमने एंजाइम को सेपरेट कर लिया, और ये 100% गारंटी नहीं हो गई कि जो हमने अब मेम्ब्रेन सेपरेट की है वो सही मेम्ब्रेन ही आई है जो हमें हमारे इंटरेस्ट की है. तो एक टाइम पे ये नहीं है कि सिर्फ एक ही मार्कर जो है हम यूज करेंगे, इसके अलावा भी हमारे पास और मार्कर होने चाहिए. जैसे जैसे हम एंजाइम को प्योरीफाई करी जाएंगे, जैसे जैसे हम मेम्ब्रेन को प्योरीफाई करी जाएंगे, तो जो हमारा डिजायर्ड एंजाइम है उसकी स्पेसिफिक एक्टिविटी बढ़ती जाएगी. तो ये भी एक क्राइटेरिया हो जाएगा कि जो हमने मेम्ब्रेन सेपरेट किया वो प्योरीफाइड हुई जा रही है. अगर और इसके साथ साथ जो एंजाइम हमें नहीं चाहिए उनकी एक्टिविटी साथ साथ कम होनी चाहिए, क्योंकि जो हमें एंजाइम चाहिए उसी की एंजाइम एक्टिविटी बढ़नी चाहिए, बाकियों की जो है वो एंजाइम एक्टिविटी कम हो जानी चाहिए. जो हमें चाहिए उसी के ऊपर हमें मेनली फोकस करना है. एंजाइम्स के अलावा मेम्ब्रेन्स जो है वो एंटीजन और रिसेप्टर्स भी कंटेन करती हैं, जिनके साथ हम स्पेसिफिक लाइगेंड को बाइंड कर सकते हैं, ताकि जब हम बाद में जब इसको फ्रैक्शनेशन कर ले तो हमें उनको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाए. तो यहाँ पे मैं डिफरेंट एंटीजन और रिसेप्टर्स का भी छोटा सा टेबल ड्रॉ करूंगी, तो स्टूडेंट्स ये भी साथ साथ में नोट डाउन कर लें. For example, antigens. Antigens बाइंड करती हैं एंटीबॉडी के साथ. सेकेंड इज द शुगर्स. शुगर्स बाइंड करती हैं लैक्टेज के साथ. प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर. प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं हमारे हार्मोन्स और ट्रांसमीटर्स. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ टॉक्सिन्स भी जुड़ सकते हैं. और उन्होंने ये स्टडी किया है कि इनका जो एंटीजन एंटीबॉडी एसोसिएशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. और जब हमने मान लो एक्सपेरिमेंट की स्टार्ट में ही जब हमने मेम्ब्रेन को आइसोलेट करना शुरू किया, हमने पहले ही मेम्ब्रेन को एंटीजन के साथ एंटीबॉडी के साथ बाउंड कर दिया, तो बहुत कम चांसेस है कि ये जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है टूटे, क्योंकि यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू बहुत कम है. तो जैसे जैसे हम फ्रैक्शनेशन करते जाएंगे, तो जब हमारा एक्सपेरिमेंट खत्म होने वाला होगा तब हमें जो मेम्ब्रेन मिलेगी वो एंटीजन एंटीबॉडी बाउंड की होगी. उसके अलावा जब अगर हमने शुगर के साथ बाइंड करना है तो हम लैक्टिन यूज करेंगे, और ये इन दोनों की भी एफिनिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि लैक्टिन्स आर द स्पेसिफिक बाइंडर्स फॉर द sugar molecule which are present on the outer side of the membrane. So this method is also as efficient जैसे कि हमने एंजाइम को यूज किया है. Now coming to the last topic, that is the covalent molecules. Covalent molecules or covalent ligands or covalent compounds. That we should consider that which covalent molecule we should use that can bind to the particular membrane lipid or the membrane protein. So there are certain characteristics. That characteristics are that covalent molecule must be specific. ये कि वो particular साइट ऑफ द प्रोटीन या पर्टिकुलर साइट ऑफ लिपिड के ऊपर जाके ही जुड़े.
और ये हमने जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल को बाइंड करना है ये प्रायर टू होमोजेनाइजेशन करते हैं। और थर्डली इट शुड नॉट perturbate the property of rest of the organelles। ये सिर्फ जो हमारा डिजायर्ड मेम्ब्रेन है, जहां पे इसको हम टैग करना चाहते हैं, जहां पे हमें इसको जोड़ना चाहते हैं, वहीं जाके जुड़े और किसी और के साथ ये इंटरफेयर ना करे। तो कौन कौन से मॉलिक्यूल हम एज अ कोवेलेंट मार्कर या कोवेलेंट लाइगेंड यूज कर सकते हैं? वो कोई भी फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल हो सकता है, या कोई रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल हो सकता है, या कोई भी पैरामैग्नेटिक एजेंट हो सकता है। और ये हमने एक्सपेरिमेंट की स्टार्टिंग में ही हमने मेम्ब्रेन के साथ इसको जोड़ना है, ताकि जब हम एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लें तब हमें ये टैग उस मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ मिले जिसे हमने सेपरेट किया है, ताकि हमें जो है मेम्ब्रेन की टोपोलॉजी, उसकी इनसाइड आउटसाइड सिमेट्री स्टडी करने में हेल्पफुल हो जाए। तो स्टूडेंट्स, ये आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर नहीं समझ आया तो आप एक बार दोबारा इस वीडियो को देखें और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो अपनी नोटबुक में नोट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।